Dear students, class 11th A and B, chapter 7, Sport Psychology, define and difference between growth and development, meaning of growth and development. The main aim of physical education is the hormones. So development of an individual, so the growth and the development of human beings are really very important in physical education. Without systematic planning, the aim of physical education cannot be achieved for the purpose. We will have to get the knowledge of the growth एंड डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। शारीरिक शिक्षा में मनुष्य के शरीर में वृद्धि और विकास का बहुत महत्व है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जब तक वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, नियमों और इनकी प्रकृति को पहचान ले तब तक शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। द पर्सन हु आर एंगेज्ड in the field of physical education should have a vast knowledge of the growth and development of individuals. If they do not have sufficient knowledge regarding the process of the growth and development of human beings, they cannot come to know about the physical, mental, social and emotional development of their student. The knowledge of the growth and development is necessary not only for the physical education, the teachers, but for also parents, because parents are also interested in the growth and the development of their words. They can play an important role in the development of their children, because children pass their maximum time in the company of their parents. Usually it is seen that parents have maximum impact on their children. So for the proper growth and development of a child, the teachers as well as a parent must have the back knowledge of growth and development. शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए विद्यार्थियों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास व वृद्धि लाने के लिए मनुष्य के शरीर के विकास में वृद्धि के बारे में पूर्ण जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। वृद्धि व विकास का ज्ञान केवल अध्यापक वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले माता पिता अपने बच्चों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अधिकतर माता पिता के संपर्क में ही रहते हैं। प्राय यह देखा गया है कि माता पिता के व्यवहार को बच्चों के ऊपर अधिक प्रभाव होता है। बच्चे को उचित वृद्धि व विकास के लिए माता पिता तथा अध्यापक को वृद्धि व विकास के बारे में पूर्ण जानकारी होनी अति आवश्यक है। Definition of growth and development. Generally, growth and development are used as synonymous words with each other. If we try and understand the meaning of growth and development, we come to know that there is hardly any specific difference. As a matter of fact, growth means the growth of physical organs, whether it is shape, size, height or weight, whereas development has a detailed meaning. In effect, growth is a part of the development. Development does not mean only growth, but it is more than that. सामान्यतः वृद्धि व विकास एक दूसरे के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यदि हम इनके शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो कोई वृद्धि और विकास में विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता। वास्तव में वृद्धि शब्द का अर्थ आकार में बढ़ना, एक शरीर या इसके भागों में वृद्धि के बारे में वर्णन किया जाता है। इसका अर्थ होता है ऊंचा आकार, ऊंचाई, लंबाई व भार में बढ़ोतरी होना तथा उसका मापन किया जा सकता है। जबकि विकास का अर्थ आकृति व संरचना परिवर्तन में, ताकि कार्य करने में बढ़ोतरी हो जाए। विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों के उदाहरण के लिए बाजू बड़े होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तनों के द्वारा विकसित होते हैं जो उन्हें अच्छा कार्य करने हेतु तैयार रहते हैं। विकास शब्द का स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है। वास्तव में वृद्धि विकास का एक भाग। विकास का अर्थ केवल वृद्धि नहीं अपितु इसमें कहीं अधिक है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड to growing larger. Interested in consist of a progress series of change of an orderly coherent type towards the goal of maturity. विकास का अर्थ केवल बढ़ना ही नहीं बल्कि व्यवस्थित तथा समानता परिवर्तन है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो।
According to Gassel, development is more than a concept. It can be observed, appraised, and in some extent even measured in three major manifestations: that anatomic, psychology, and behavioral. Behavioral things, however, constitute its most comprehensive index of the development status and development potentials. विकास केवल धारणा ही नहीं, विकास का निर्धारण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। विकास का मापन शारीरिक व्यवहारिक दोनों दृष्टियों में किया जा सकता है, परंतु विकासात्मक क्षमताओं की दृष्टि से व्यवहारिक मापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। For comparative knowledge about growth and development, it is very vital for us now about their difference. These differences are stated below. वृद्धि व विकास से पूर्ण रूप में अवगत होने के लिए इनके अंतर को समझना अति आवश्यक है। यह अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड वेयर एज डेवलपमेंट प्रेजेंट्स द मल्टीपल चेंज इन द बिहेवियर, इफिशिएंसी एंड द कैपेबिलिटी. It is not in as a job of the measure this type of the change in development. It can only be observed. वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रकट करता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापना आसान कार्य नहीं है। विकास का निरीक्षण किया जा सकता है। ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू द डेफिनिट एज. जनरली आफ्टर मेच्योरिटी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, वेयर एज डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। साधारणतः बुद्धि मनुष्य में परिपक्व होने तक समाप्त हो जाती है, जबकि विकास की क्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो कि आजीवन चलती रहती है। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. थर्ड पॉइंट, वेयर एज डेवलपमेंट इज ए वेरी कंप्रेहेंसिव. ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज द हार्मोन्स सच एज ए फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट. वृद्धि विकास का एक भाग है, जबकि विकास स्वयं में बहुत विस्तृत है। इसमें वृद्धि भी शामिल होती है। विकास सर्वांगीण होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास. फोर्थ, ग्रोथ इज रिलेटेड टू द चेंज इन द हाइट, वेट, शेप एंड साइज ऑफ एन इंडिविजुअल, वेयर एज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द चेंज इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. वृद्धि किसी व्यक्ति के आकार, लंबाई, भार व ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन से संबंधित होती है, जबकि विकास सभी पहलुओं में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। Development is not necessary along with growth. If we take more food, our body weight can be increased, but it is not necessary that our efficiency or the capability will also be increased. So it can be said that the development is not necessarily according to the growth. It has also been observed that without physical growth, mental, social and the emotional development may usually take place, although it is also in fact the harmonious development cannot be placed in the absence of the proper physical growth. So created sound mind dwells in the sound body. वृद्धि के साथ साथ विकास का होना आवश्यक नहीं। ये आवश्यक से अधिक भोजन लेने से एक व्यक्ति का भार बढ़ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भार में वृद्धि में उनको कार्यक्षमता का कार्यकुशलता भी बढ़ जाए। यह कहा जा सकता है कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो, ये आवश्यक नहीं है, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि शारीरिक वृद्धि यदि ठीक न हो तो व्यक्ति का पूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं होता। इसलिए प्लेटो ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। 6 पॉइंट है, growth is related to one aspect of the personality and its scope is also limited, whereas development is related to all aspects of the personality and its scope is also very wide. As a matter of fact, both growth and development different from each other, but in wider and practical sense both the terms are used to denote change in the individual's physical as well as a functional behavior. These change, which cover physical, intellectual, social and the emotional aspects of human life, are
change in size, proportion and the features. All the above the maintained change have qualitative and quantitative except, hence it can be allowed that growth and development of hand in hand, and these two terms are generally used collectively. These are not poles apart. वृद्धि व्यक्तित्व के एक पहलू से संबंधित है तथा इसका क्षेत्र भी सीमित है, जबकि विकास सभी पक्षों से संबंधित है। इसका क्षेत्र भी अति विशाल है। वास्तव में वृद्धि और विकास परस्पर भिन्न है, किंतु विस्तृत और प्रयोगात्मक व्यावहारिक ज्ञान में दोनों का ही प्रयोग व्यक्तियों के शारीरिक और कार्यात्मक कार्य व्यवहारों में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ये परिवर्तन जो अपने अंदर मानव जीवन के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावात्मक पहलुओं को समेटे हुए आकार, समानुपात, प्रोपोर्शन और रूप में आए परिवर्तन, उपरोक्त सभी परिवर्तनों के गुणात्मक और मात्रात्मक पक्ष होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास एक साथ चलते हैं और इन दोनों शब्दों को सामान्यतः सामूहिक रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कोई विशेष अंतर नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट।